far as the police are concerned. The hunt to nab husband is currently on. Police officials have now written to the agencies and are demanding that Samarth's passport be suspended. Two dowry deaths that have shocked the entire nation. Twisha's case from Bhopal and Deepika's dowry death case reported from Noida. Family members of both Twisha and Deepika have alleged that their daughters were physically assaulted, they were troubled, and that led to their death. And there was a dowry demand. We have Shefali and Dev joining us on the broadcast. Shefali, both the families of Twisha and Deepika say that dowry is the reason behind this, that their daughters were tortured in these families. Right. We are learning that these are two separate incidents. One is of Twisha and second is of Deepika. And in both of which the families are accusing the in-laws of harassment, continuous harassment, mental, physical harassment for dowry. And if we talk particularly about Deepika Nagar, who was 25 years old and was just married for past 1.5 years. Yesterday, last night, what the family is accusing that she jumped off, or she jumped from the rooftop while the father of Deepika Nagar was there just few hours back to meet the family members, as Deepika Nagar was continuously telling the father that she is being harassed, she is being beaten by the family members, by the in-laws. And when he went there to speak with the family members, as that he was trying to, meddle in, where he was trying to make situation better for Deepika Nagar. And when he left, assuming that things are better, he left, reached home, and that is when he got a call saying that Deepika Nagar has fallen. He was not told from where she was fallen, but later he found out that she was fallen from the rooftop. Today, the postmortem was done. We are currently outside the mortuary. We are being told that the body of Deepika Nagar has been taken by the family members and is currently in its village. And we know that the two accused right now, the husband and the father-in-law, has been arrested by the police. All right, Shefali, do stay on with us. Dev, now in the Noida case, there have been at least arrests that have been made. But in the Bhopal case, in Twisha's case, the mother-in-law has been granted anticipatory bail, whereas the husband is absconding. Well, yes, absolutely, because the allegations are very serious, and the kind of allegations that have been made are of dowry harassment, mental torture, and also the fact that she was transferred into, she was pressured into transferring her shares worth 20 lakh rupees, which her family had granted her. In fact, the other very chilling accusation that has been made was the fact that when she was pregnant, she was also asked to abort the pregnancy, and the mental torture only increased after the termination of the unborn child. So these are some very serious allegations, which is why her family members Shefali and Dev, do stay on with us. I have to interrupt. We have a reaction coming in from Twisha's brother. Let's listen in. ड्रग्स नहीं लेती थी, डायरेक्टली बोलें तो ये सारी चीज़ें उनके बेटे के ऊपर लगती हैं। ड्रग्स वाला कोई केस है नहीं, और ड्रग्स वो केवल मानसिक स्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि ये सुसाइड ऐसा केस दिखाना चाहते हैं कि वो ड्रग्स एडिक्ट थी, वो उसने ऐसा कुछ अपने आप कर लिया, उस तरफ केस को ले जाना चाहते हैं, केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ड्रग्स वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं एक्चुअली, तो ये सब कुछ अपनी बनाई हुई बातें हैं। We have some breaking inputs coming in as well. Sensational updates coming in from the court. Twisha's lawyer is now citing WhatsApp chats. The WhatsApp chats with the family members have been cited in the court. The lens is on the conversation that Twisha had with her family members, the conversation in which she said that she feels suffocated. Let's go across to Makrand, who's getting us more details. Makrand, Twisha ने अपनी मम्मी से बातचीत में कहा था कि उनको घुटन महसूस होती है। एक और चैट थी, वो उनकी बहन के साथ थी, जिसमें वो बता रही थी कि क्या-क्या तकलीफें हैं, क्या-क्या परेशानी है। We're given to understand कि इसका जिक्र कोर्ट में हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। उसमें जो समर्थ के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि पैसों के लेन देन को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
और इसके अलावा पैसे कहाँ पर खर्च किए जाते थे, क्योंकि सारा पैसा त्रिशा के अकाउंट से ही खर्च होता था। इसलिए कहीं ना कहीं डाउट होता है कि मौत की वजह कुछ और हो सकती है और इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसीलिए उसको जमानत जो है समर्थ को दी जानी चाहिए। वहीं त्रिशा के जो वकील हैं, उनके परिवार के जो वकील हैं, उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि जो चैट्स आई हैं सामने, ये साफ साफ बताती हैं कि वो प्रताड़ित हो रही थी। परिवार बचाने के लिए त्रिशा बार बार प्रयास कर रही थी, उसका परिवार प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर काफी टॉर्चर किए जा रहे थे और इसको भी इन्वेस्टिगेट किए जाने की जरूरत है। दोनों ही पक्ष इन्वेस्टिगेशन के फेवर में है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है यानी त्रिशा का जो पक्ष है, उसका ये मानना है कि अगर समर्थ को जमानत मिल जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। लिहाजा अब कोर्ट ने आर्गुमेंट पूरे होने के बाद दोनों पक्षों को सुन लिया है और संभावना यही है कि अगले 15 से 20 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि समर्थ को अग्रिम जमानत देनी है या फिर नहीं। इस बीच पुलिस ने जो पासपोर्ट है उसको इस्तेमाल समर्थ ना कर पाए, इसकी प्रक्रिया शुरू की है ताकि वो विदेश न भाग पाए। पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही है। वहीं अग्रिम जमानत को लेकर के समर्थ के वकील को उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी, जबकि पीड़ित पक्ष का मानना है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। All right. The family also remember accused Makrand of the bail that was granted earlier. परिवार वालों का ये कहना है कि collusion है, पुलिस वाले मिले हुए हैं और इन्फ्लुएंशियल है फैमिली, इसीलिए उनको कोई वकील भी कोर्ट में नहीं मिल रहा। इस तरह की तमाम बातें हुई थी। क्या ये एलिगेशंस कोर्ट में भी रिपीट किए गए? देखिए, जो एलिगेशन है वो परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं और कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो वकीलों का हुआ है। ऑफिशियल ऑन पेपर जो शिकायतें की गई हैं केवल उन्हीं आधार पर जिरह यानी कि बहस हुई है। अभी जो चैट सामने आए हैं, जो पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं या उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये आर्गुमेंट्स हुए हैं। जहां तक वकील नहीं मिलने और अन्य चीजों का सवाल है तो उसको लेकर के जब कोर्ट में ट्रायल हुआ उस समय इन तमाम आरोपों पर चर्चा होगी। अभी फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो अग्रिम जमानत मिलने को लेकर के हो रही है कि अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या फिर नहीं, और इस पर ही दोनों पक्षों ने आपस में अभी फिलहाल बहस कंप्लीट कर ली है। थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाए। ऑल राइट मकरन, जैसे ही फैसला आएगा हम आपके पास लौटेंगे फॉर मोर डिटेल्स ऑन व्हाट द कोर्ट हैज टू से। The court has heard both sides in the Bhopal dowry death case. In fact, I spoke to Twisha's father earlier. Let's take a look. पहली बार ट्विशा ने आप लोगों को कब बताया that there is also an angle of domestic abuse and violence, कि उनके साथ मारपीट होती है? इसका ये शादी के 1.5-2 महीने, मतलब इवन एट द टाइम ऑफ हनीमून ट्रिप वो पहला इंडिकेशन मिल चुका था कि इसको किसी बात पर जो है कुछ डिले हो गया था। फ्लाइट टाइमिंग्स को रीड करने में उसने प्रॉपर्ली रीड नहीं किया था, ये लोग पहुंच नहीं पाए थे, कुछ डिले हो गया था। तो उसने मतलब जब ट्रेवल कर रहे थे हनीमून के लिए तभी जो है उन्होंने जो है धक्का मार दिया उसको। तो इस त्विशा को बहुत रोना आया, बोले ये कैसा आदमी है, बोले अभी हम हनीमून ट्रिप पे जा रहे हैं और इसने एक तरीके से बोले मेरे को धक्का मारा है। उसने अपने ब्रदर को फोन किया रोते हुए, बोले कैसा आदमी है। ब्रदर बोला यार कई बार आदमी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, डोंट टेक दैट मच सीरियसली और तुम आगे बढ़ो। तो पर इंडिकेशन वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तो जब इसकी जॉब गई है उसके बाद तो ये डेली की प्रैक्टिस थी। उसकी चैट सब हमने सब सबमिट की हुई हैं जिसमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शी वाज हरास्ड बाय गिरीवाला सिंह एज वेल फ्रॉम समर से तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर देखिए इनके सारे चीजें जो दिख रही हैं, जो भी एक प्री प्लान्ड चीज दिख रही है इसमें कि एक आदमी को पता है कि क्या होने वाला है, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज इन्होंने की हुई हैं। जो चैट्स हम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों को ऐसा लगता है दैट शी यूज्ड टू कंज्यूम ड्रग्स। क्या इस तरह की बातें भी उसके साथ होती थी? वही तो कह रहा हूँ कि वो जो एक्चुअल में जो ड्रग एडिक्ट है वो उसका पति था और उसकी पूरी थॉरो जांच होनी चाहिए। उसके रिकॉर्ड है उसका कि 2 साल टर्मिनेट हुआ है वो अपने लॉ कॉलेज में बेस्ड ऑन दिस ड्रग्स। और आज भोपाल में इज अ नोन ड्रग एडिक्ट, एवरीबॉडी नोज। उसकी जांच नहीं हुई। ये सारी बातें आपको कब पता चली? अभी पता चली है हमें। हमें पहले कोई बताता नहीं।